to learn. Let's have an introduction session of the chapter called Structure of Balance Sheet. Company are required to present its financial statements every year as required by the provisions of Companies Act 2013. These financial statements are historical documents and are the final product of accounting work done during the whole accounting period. So, as per Companies Act 2013, currently, which act is followed for the formation of financial statements? Financial statements includes income statements and balance sheet. Income statement means nothing but profit and loss account and balance sheet. That are your financial statements. So whatever financial statements are framed by company, they should be framed or present as per Companies Act 2013. Whatever the format is fixed, whatever the provisions, what are the rules and regulations are kept as per Companies Act 2013. As per that rules and regulations, you are supposed to prepare statements. These financial statements are based on what? We always take historical data like machinery purchased, furniture framed. We always represent in the financial statement in historical terms. And that should be kept in the statements like balance sheet. We are supposed to keep land and building, show plant and machinery, land and building on asset side. So what exactly is the real picture we can come to know? Most of the companies also prepare quarterly financial statements to know the result of that quarter. 3 months statement, quarterly means 3 months statements are prepared by the company to know what exactly they have earned in a particular quarter, what is the income in that particular quarter. At the end, it will simplify the work of the company. At the end, the company financial statement to know the result of the whole year. एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे सर? 4 क्वार्टर्स होंगे. तो अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाते जाएंगे तो अंत में आसान हो जाएगा सर. सबको फिर मर्ज कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा और एक एनुअल स्टेटमेंट इजीली बन जाएगा सर. और ये कंपनी के लिए सबसे आसान हो जाएगा सर. एक्चुअली आई वाज आल्सो टू डिस्कस विथ यू व्हाट इज बैलेंस शीट, लेकिन मुझे ट्रेडिंग और पीएनएल में जो जवाब मिले उससे मैंने सोचा कि सर आगे पूछने जैसा और डिस्कशन करने जैसा मुझे लगा नहीं सर. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप्ड and I have started the journey of my syllabus with you. The financial statements are organized summaries of detailed information about the financial position of the company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा सर? कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, और वो इंफॉर्मेशन किससे जुड़ी हुई होगी सर? कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन उससे जुड़ी हुई होगी. और ये किसका combination होता है सर? जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्रोमाइजेस ऑफ 2 बेसिक स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. ये 2 स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या खस्ता हालत है कंपनी. व्हाट इज बैलेंस शीट अगर आपको पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज बैलेंस शीट, तो सर 2 लाइन का जवाब है. बैलेंस शीट इज अ शीट that sheet statement which shows the financial position of the business at a particular point of time. ज़्यादातर सालाना एनुअल बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाया जाता है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चलती है कि उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा है या लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा है. ये फाइनेंशियल पोजीशन हम चेक कर सकते हैं कंपनी की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है या हालत खस्ता है, गड़बड़ है. तो एक बात खास आपको ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. ये स्टेटमेंट याद रखना, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था हाउ मेनी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन एनुअल इन द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स. तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सर ट्रेडिंग अकाउंट. अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट. ये ध्यान रखना है. सो इट इज नॉट हैविंग डेबिट और क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट आप जब फ्रेम करते हैं सर उसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती. वहाँ हम क्या लिखते हैं सर? लायबिलिटीज और एसेट साइड. इतनी नॉलेज आपको होगी नहीं है तो यह भी याद रखना. आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑल द रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंसेस, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट all the remaining
credit balances are the liabilities of a firm which are shown on the liability side, and similarly all the remaining debit balances are considered as assets or receivables of a firm which are recorded on asset sides. प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर हम सारी क्रेडिट बैलेंसेस और सारी डेबिट बैलेंसेस मीन्स जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो वहाँ दर्शा देते हैं। प्रॉफिट और लॉस से जुड़ी हुई सारी चीजें वहाँ दर्शा देते हैं। एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, अक्रूड इनकम है, ये सारी चीजें हम वहाँ दर्शा देते हैं। इसके अलावा जो बचता है सर वो कहाँ जाएगा सर? ऑल द credit balances will be shown in liability side and all the debit balances are shown in asset side. So debit balance has a relation with credit side, sorry asset side, and credit balance has a relation with liability side. इतना basics याद रखो. That was all about the introduction. Continuation आगे बढ़ते हैं. What is the main purpose of preparing balance sheet? Balance sheet क्यों बनानी चाहिए? क्या जरूरत है balance sheet बनाने की? नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा सर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट का, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइडर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। सो द ऑब्जेक्टिव्स, और नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं सर वही बैलेंस शीट के भी ऑब्जेक्टिव्स माने जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर जितने भी हम अकाउंट्स और स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके जितने ज्यादातर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स बैलेंस शीट की भी होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव, what is the first objective for preparing, what may be the first purpose or what is the importance exactly of preparing balance sheet? तो सर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस है, इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है एवरी मैनेजमेंट वांट्स टू नो इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जानने के लिए सर ये स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। मैनेजमेंट कितना साउंड है, कितना अच्छे से डिसीजन ले पाया है, कितनी इफेक्टिव इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजन लेती है सर, ये हमको उनकी बैलेंस शीट से पता चल सकता है। सो मैनेजमेंट कम्स टू नो वेदर इट इज वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया था सर, क्या वो डिसीजन कारगर साबित हुई है, इट इज गुड और नॉट, ये कहाँ से पता चलेगा सर? बैलेंस शीट को देख के, स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा। और किसके लिए इसका पर्पस इंपॉर्टेंट है सर? शेयर होल्डर्स के लिए तो बैलेंस शीट वरदान है। इन अ कंपनीज मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। Here shareholders are investors and they want to know whether their investment is in safe hands or not. So accordingly they make decision to retain their investments or dispose of their investments. Shareholders भी balance sheet, कितने shareholders balance sheet को ध्यान में रख के investment का decision? Many of the shareholders जो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के, कुछ पॉइंट्स को माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। भाई ये पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन हेड है, चेयरमैन कौन है, बॉडी के अंदर है कौन कौन, अच्छा ये बंदा ये तो बहुत अच्छा है, कंपनी को आगे लेके जाएगा, बंदे के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख के, उनकी मैनेजमेंट डिसीजन देख के, डिसीजन मेकिंग पावर को देख के भी इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। वो सोचेंगे कि जो पैसे वो लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो क्या उनसे उनको फायदा होगा, क्या उनके जो इन्वेस्टमेंट है सेफ हैंड्स में है, मिसयूज तो नहीं होगा उनके पैसों का, ये सब डिसीजन लेंगे शेयर होल्डर्स। ये बैलेंस शीट को देख के वो ये डिसीजन ध्यान में लेंगे कि भाई होल्ड करके रखना है या अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, इस कंपनी में लॉयल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्रेडिटर्स सर, क्रेडिटर्स हु आर क्रेडिटर्स पहले ये समझते हैं सर। फ्रॉम द बैलेंस शीट a person would come to know the status of the creditors. Non-current liabilities shows the debts of the company which are to be paid after period of 12 months. At the same time, current liabilities includes the debt to be paid in near future, that is 12 months. तो क्रेडिटर्स जो होते हैं सर, क्रेडिटर्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं? कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स सोचेंगे कि कंपनी को उधार माल देना है या नहीं देना है। कंपनी का बैलेंस शीट साउंड होगा, लायबिलिटी कम होगी, एसेट ज्यादा होगा, ऐसा दिख रहा होगा,
तो वो सोचेंगे चलिए कंपनी को उधार मार देते हैं, कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं। इस तरीके से वो भी उनके लिए भी बैलेंस शीट इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयज कम टू नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी। They would come to know whether the company's financial position has improved or not during a current year, and accordingly they can put their demands of salary hike, bonus, job safety, job facility, etc. बैलेंस शीट देख के वो भी डिसाइड कर सकते हैं, कंपनी की लायबिलिटी और एसेट साइड चेक कर सकते हैं, इम्प्रूव हो रही है, एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। ये सब देख के वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि सर सैलरी में बढ़ोतरी की मांग करनी है, बोनस मांगना है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। जॉब फैसिलिटी में कुछ इंक्रीज करना हो, कोई ज़्यादा फैसिलिटी की डिमांड करनी हो, कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो सोच सकते हैं बैलेंस शीट को देख के। अगला पॉइंट सर, कस्टमर्स। कस्टमर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट, उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है बैलेंस शीट। ज़्यादातर कस्टमर ध्यान में नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं, कीन कस्टमर्स होते हैं, जो कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान में लेते हैं सर। कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजर्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्हें एक इम्पोर्टेंट यूजर्स माना गया है। एग्जिस्टिंग मार्केट इज नॉट अ मार्केट ऑफ सेलर बट इट इज अ मार्केट ऑफ बायर। Customers are fully aware of their rights for purchased products. So customers use the balance sheet to get an idea about their products, qualities and brand, etc. कस्टमर को जो कंपनी अच्छी लगती है, जो कंपनी की ब्रांड्स अच्छी लगती है, तो हो सकता है वो उनकी बैलेंस शीट पे भी फोकस करे कि भाई इस कंपनी के साथ लॉयल रहने जैसा है या नहीं है, उसकी ब्रांड इतनी फेमस है या नहीं है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, क्या इस कंपनी के साथ लॉयल रहने जैसा है, उनकी ब्रांड्स यूज करने जैसी है, वगैरह वगैरह। फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है रेगुलेटरी बॉडीज, जो नियंत्रण रखती है कंपनी के ऊपर, जो कंट्रोल रखती है, वैसी बॉडीज। जैसे बैंक हो तो आरबीआई नियंत्रण रखती है, इंश्योरेंस कंपनी हो तो आरआईडी ए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन या अथॉरिटी कह सकते हैं, वो नियंत्रण रखती है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो ये लोग भी नजर रखते हैं कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होती है, उनके उनके ऊपर उनकी भी नजर होती है। A company is controlled by the government or government-formed regulatory bodies such as RBI, SEBI in case of mutual fund companies, the companies who are dealing with future fund or who are listed in stock exchange, RIDA, etc. These bodies use the financial statements of the company to verify their operations. सो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये चेक करती हैं अकाउंट्स जो है सर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फ्रेम किए जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाए जा रहे हैं ना, कोई और तरीके से बना रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज की भी नज़र रहती है, उनके लिए भी ये स्टेटमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है। रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, ये एक स्पेशल पोजीशन है, रिसर्चर्स की भी नज़र होती है कि आज कंपनी का प्रॉफिट कितना है और फ्यूचर में कितना प्रॉफिट करेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, लिक्विडिटी कितनी रहेगी। ये सारी रिसर्च भी कंपनी को सजेशन मिलेगी कि कंपनी ने कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, क्या लैकिंग है, व्हाट इज लैकिंग इन द कंपनी एंड व्हाट शुड कंपनी फोकस ऑन इन फ्यूचर। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है सर। और आखिरी पॉइंट आता है सर बैंकर्स। बैंकर्स भी डिसाइड करेगी कि भाई इस कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, इसे लोन देना है या नहीं देना है। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, एसेट ज़्यादा होगी, लायबिलिटी कम होगी, तो बैंक सोच सकती है कि भाई हाँ, कि मान लीजिए एसेट 2 करोड़ की है, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, तो एसेट इज मोर देन लायबिलिटी, तो यहाँ पे कंपनी साउंड है, इसे लोन देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की साउंड है, तो हम इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी सोचेगी क्या इस कंपनी को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, क्या ये कंपनी को सपोर्ट करेंगे तो कंट्री के डेवलपमेंट में कुछ इजाफा होगा, जीटीबी वगैरह बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, एडिशन होगा। शुड वी सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर कंपनी, गवर्नमेंट ये भी सोचेगी। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नीड्स अ प्रॉफिट स्टेटमेंट पे फोकस होगा। बैलेंस शीट भी साथ साथ में इम्पोर्टेंट है, वो भी बनानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट है और कितनी लायबिलिटी है जो पे करनी पड़ेगी, जो ज़्यादातर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से पता चलता है।
Financial statements of the company are also very crucial for income tax. तो ये हो गई इसके इम्पोर्टेंस की बात. क्या बैलेंस शीट की कोई मर्यादा है, कोई लिमिटेशन है? अगला पॉइंट लेते हैं सर. आफ्टर